पूछो जाके उनसे जिन पे रोशनी नहीं, पूछो जाके उनसे कैसी लगती है कमी। On personal effectiveness of an optometrist by Jayant Jha sir. He is the practicing management consultant and consultant optometrist at SJ Vision Foundation, Muzaffarpur. Vast experience in clinical practice. He was a former optometrist at CL Gupta Institute and Shankar Netralaya Eye Hospital. He was also the former business analyzer at Meda Pushtak Bhavan, Jaleshwar. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. I welcome you all to the Opto Hub, and I welcome you, sir, to the Opto Hub. Over to you now. Please continue. Thank you, Optohub, for giving me this chance. And welcome all the optometrists who all are present. And rest of the introduction has been nicely given by Optohub team. We will be dealing with a new topic. Maybe some of us will be known to this topic, may not be, but in optometry practice or in optometry syllabus, this topic has been given very less importance. We, the front of the society, front of the place where we stand. Definitely, we are the frontliner, but we feel that we are not at the front. And the reason behind it is that our own personal effectiveness. Personally, I have done so many workshop with a small, very small amount of optometrists, other professionals also, because practice management along with consultant optometrist. Practice management is one of my area of interest, which we all optometrists have learned as a subject known as practice management. It is in our syllabus, but very less among us does this speciality, does focus on this speciality, and this we need to focus on these specialities. So we will start with a learning what we will be gaining today after this session. So that will be to understand what is personal effectiveness, then know our group means this professional group means we, and we means the optometrist. So to identify the effectiveness of an optometrist, and then we will define, we will design, and then we will develop specific our own personal effectiveness. Till now, I think everything is clear. I'm assuming it going to that is personal effectiveness. So personal effectiveness means that as a person, what we need to do and what we are doing should be measured, should be defined, and what we want to get, we should get it. And this term personal effectiveness is the only key which helps us to get the desired result. Means this is the key factor which gives us the result, the desired result. So to know this thing only, what I did, I have used one instrument. This instrument is known as HRD instrument, Human Resource Development Instrument. And all attendee, I guess all attendee here. So
I have analyzed that form. That form includes so many questions, and you have answered that question, and all the scores have been calculated on the basis of this instrument, and we have measured all the score. And then this is the thing which we need to know. Means this one. On the basis of openness, or on the basis of three things. Mainly the openness is one term, but it has further been classified into three things. That is self-discipline, then openness to the feedback, whatever feedback somebody is giving to us. So openness to that feedback, and the third one is the perceptiveness. So on the basis of three basic aspects, we have segregated the results, and on all these things, there are total 8 types of effectiveness. So you can see this ring. This is a donut. Everybody likes to eat this donut. You can find it at any coffee shop and all. So this donut consists, you can take it as a circle also. A bigger area in brown color, which is showing, you can see it from color, clearly you can see it, that ineffective. So maximum of our participants were ineffective. Don't get tensed by listening this ineffective word. This is the first time. We did it with 56 people, and out of this 56 people, this is around more than 75% people. You can see clearly, this image is showing it clearly, that more than 75, approximately we can take it 75%. 75% people are ineffective in our own group. And then there are very few people. Light brown color is there, which is showing insensitive. And then there is a sky blue color, which is showing secretive. But very less people are there who are effective. I can say that there were only 2 people, 2 optometrists were effective kind of. So don't get obsessed. And there is one term which is obsessed, task obsessed. So one optometrist was in the group who was task तरीके के effectiveness type, effective people, insensitive people, egocentric people, dogmatic people, secretive, task obsessed, lonely empathic and ineffective people. एंड हमने एक क्वेश्चन शेयर किया था सबके साथ, जिसको कि इस सेशन के लिए कंपलसरी बना के रखा था हमने, कि इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसीलिए देना जरूरी था ताकि जो ग्रुप हमारे सामने बैठे रहे, उन ग्रुप को पता चल सके कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो किस टाइप के लोग हैं। हम क्लियरली किसी का नाम लेकर के नहीं बोलेंगे कि आप इफेक्टिव है, आप इनइफेक्टिव है। हमारे ग्रुप में इतने लोग इनइफेक्टिव है, और यही रीजन है कि हमने एक छोटे छोटे ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में, अब तो अभी ये जमाना ऑनलाइन चीज का आ गया है, हमने पर्सनली लोगों के साथ ये टूल के साथ वर्क किया है, और सिर्फ ऑप्टोमेट्री ग्रुप किया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के ग्रुप में भी किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में किया है, बहुत सारा सेशन किया है। बट दूसरे प्रोफेशंस के साथ अगर हम अपने प्रोफेशनल्स को तुलना करके अगर देखते हैं, तो पहले भी और आज भी हमको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पहले भी हमें हमारे प्रोफेशनल्स ग्रुप में इनइफेक्टिव पीपल ज्यादा मिले हैं, और आज भी वही है।
बट इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो, अब जैसे ऑप्टोमेट्री को ही हम ले लेना, तो हम जन्म से ही तो ऑप्टोमेट्री सीख के नहीं आए हैं, हमने तो बाद में पढ़ाई की है और फिर सीखा है। अब हमें सिर्फ ऑप्टोमेट्री पढ़ाई कर ली हमने, जॉब कर ली हमने, सारा चीज कर लिया, बट इसके बावजूद भी हम लोग खुद यहाँ जितने भी लोग हैं, तो स्टूडेंट्स होंगे तो वो हो सकता है मेरे इस लेक्चर के बाद मायूस भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। मायूस हो जाए तो पर्सनली मेरे से बात करें, बट खुश हो जाए तो अपने ऊपर ज्यादा काम करें। तो यहाँ पे ये सारा चीज क्यों बात कर रहे हैं ग्रुप के साथ, उसका एक ही रीजन है कि हमारा जो ग्रुप है इफेक्टिव होके आए। बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, ढेर सारा काम करते रहे तो खूब काम करते हैं, लेकिन काम करते करते थक के और उनको कहीं भी कोई नाम नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे बहुत सेलेक्टेड लोग हैं जो कि स्मार्टली काम किए हैं और वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। होना चाहिए, सारे लोग होना चाहिए। बाकी दूसरे प्रोफेशन में अगर देखा जाए, हमारे ही प्रोफेशन में हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारा इश्यूज हैं। 10 साल तो हमको भी हो गया इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए, और इस 10 साल में बहुत सारा चीज देखा है और आगे भी बहुत सारा चीज देखना है। 2020 हमेशा से कहा जाता था कि 2020 विल बी द ईयर ऑफ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। बहुत सारा चीज हुआ, बट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। और ये सब के पीछे हु इज द रीजन? तो रीजन, वी आर द रीजन, वी द ग्रुप आर द रीजन। और इसीलिए हम लोग को पर्सनली अब इफेक्टिव वे में काम करना होगा। कैसे जनरेट होगा, इसी चीज के लिए हम आज ये सेशन प्लान किए हुए थे। तो हम लोग बात करते हैं अब ये सारा इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, इनसेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। इफेक्टिव मींस, इफेक्टिव पीपल कौन लोग होते हैं? इफेक्टिव पीपल वो लोग होते हैं जो कि अपने तीन चीज हमने बताया था ना ओपननेस का, कि एक सेल्फ डिस्क्लोजर, एक ओपननेस टू फीडबैक एंड एक परसेप्टिवनेस। पर समझ ही रहे होंगे, ओपननेस टू फीडबैक का मतलब ही हम समझते हैं कि समझ रहे होंगे, मींस फीडबैक के लिए आप कितना खुला है। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब आप अपने आप के बारे में लोगों को कितना बताते हैं। और परसेप्टिवनेस का मतलब आपका नजरिया, आप किसी भी, ठीक। तो इन तीनों के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इफेक्टिव पीपल आर दोज पीपल हु आर हाई इन एवरीथिंग। मींस वो अपने आप को डिस्क्लोज भी करते हैं, वो अपने बारे में अगर कोई उनको राय देता है तो उस राय को समझते भी हैं और उसके साथ कन्फ्रंट करते हैं, चाहे वो राय नेगेटिव ही क्यों ना हो, उसको पॉजिटिवली लेते हैं। परसेप्टिवनेस मतलब कहीं भी वो हर एंगल से देखते हुए वहां से एक अपॉर्चुनिटी निकाल के लेके आते हैं, एक पॉजिटिव चीज लेकर के आते हैं। हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका स्कोर बहुत लो होता है। ईगोसेंट्रिक पीपल जो होते हैं वो अपने बारे में तो बहुत ज्यादा बोलेंगे, अपने बारे में बहुत ज्यादा चीज करेंगे, अगर कोई उनको नेगेटिव फीडबैक दे तो वो इस तरह से बोला, हमको ऐसे बुक कैसे बोल दिया, हमको ये वाला नेचर होता है। फिर डॉगमेटिक पीपल जो होते हैं उनका भी सेल्फ डिस्क्लोजर बहुत हाई होता है, बट फीडबैक लेंगे नहीं, हम अपना काम कर दिए और आपका सुने ही नहीं और हम चले गए। फिर परसेप्टिवनेस उनका अच्छा होता है, हाई होता है, बट फिर तो ये जो तीन चीज है, सेल्फ डिस्क्लोजर, ओपननेस टू फीडबैक और परसेप्टिवनेस, ये तीनों चीज हमारे इफेक्टिवनेस को डिसाइड करती है। हमारे इफेक्टिवनेस एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा बिहेवियर है। बिहेवियर किस चीज, क्या चीज का बिहेवियर? तो रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। हमारा रिजल्ट ओरिएंटेशन, रिजल्ट हमें क्यों चाहिए? सक्सेस के लिए। तो सक्सेस ओरिएंटेड बिहेवियर
इज नोन एज इफेक्टिवनेस। पीपल जो होते हैं वो अपने आप के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, अपने अपने आप को एकदम से छुपा के रखेंगे, अपने बारे में कुछ नहीं, दूसरे का सुनेंगे जरूर, दूसरे के लिए बेहतर देखेंगे जरूर, हर चीज नजरिया उनका बेहतर रहेगा, लेकिन अपने बारे में नहीं बोलेंगे। और पहली बार जब हमने इस ट्रेनिंग को किया था IIHMR में, जयपुर में, लीडरशिप और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंतर्गत, तो मेरा खुद में जो इफेक्टिवनेस टाइप था वो यही था, सिक्रेटिव। तो बहुत सारे लोग सिक्रेटिव टाइप के होते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मीन्स छुपा रुस्तम टाइप, सारा काम करेंगे, सबके लिए बेहतर करेंगे, लेकिन अपने आप को निखार के नहीं लेके आएंगे। बट नाउ आई एम इफेक्टिव, ये इसको करने के बाद हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, और उसी का एक पार्ट आप लोग से मिलना भी है। देन एक 6th टाइप जो है, दैट इज टास्क ऑब्सेस्ड। टास्क ऑब्सेस्ड अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ फीडबैक लेंगे और फीडबैक पे काम करेंगे। मीन्स बॉस टाइप, यस बॉस वाला जो पर्सनैलिटी है, काम हो जाएगा बॉस, ये टाइप जो है, दिस इज टास्क ऑब्सेस्ड। ये भी बहुत बेहतर और बहुत लंबा दौर तक नहीं चल पाते हैं, इनका भी टास्क ऑब्सेस्ड का परसेप्टिवनेस भी कम रहता है, क्योंकि वो दूसरा चीज नहीं देखते। उनके बॉस ने कह दिया कि ये काम होना है, तो यस बस काम डन, जॉब डन, खत्म। एक 7वां लोग होते हैं, 7वां टाइप जो है इफेक्टिवनेस टाइप जो होते हैं, वो है लोनली इम्पैथिक। मीन्स वो गुमसुम रहेंगे, न किसी का सुनेंगे, न किसी को अपने बारे में बताएंगे, चीजों को देखेंगे जरूर, अपना काम करेंगे, बस उतना मतलब नहीं है, अकेले अकेले रहेंगे। बहुत लोग होते हैं हमारे ग्रुप में 9 to 5 जॉब में, 9 to 5 जॉब किए, ऑफिस आए, 9 बजे आए, न किसी को कुछ कहना है, न किसी से कुछ बोलना है, अपना काम किए चले गए। That is also not good. Then the last one, which is ineffective type. Ineffective type वो लोग हैं जो अपने बारे में भी लोग को नहीं बताते हैं, दूसरे का सुनते भी नहीं है, फीडबैक भी नहीं लेते हैं, और हर परिस्थिति में नेगेटिव ही रहते हैं, कहीं भी निराशाजनक व्यक्ति जिसको कहते हैं। बस 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बस हो नॉर्मल लोग। तो हम लोग नॉर्मल ही तो हैं, इसलिए तो हमारा स्कोर यहाँ पे इनइफेक्टिव ज्यादा है। इस टॉपिक के बारे में, इस चीजों के बारे में पहले से जान नहीं रहे थे। कहीं है 10 तरह का क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि आपका जो एक 1, 4, 7, उसके बाद 10, ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये सब आपके सेल्फ डिस्क्लोजर को दिखाते हैं। सेल्फ डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप लोग अगर क्वेश्चन को रिव्यू कर पा रहे हैं, या इस सेशन के बाद रिव्यू करके देखिएगा एक बार, और हम तो कहेंगे कि एक बार फिर से आप 1 महीना इसको वर्क करने के बाद फिर से सेम क्वेश्चंस को रिपीट करिएगा, लेकिन सिर्फ रेस्पॉन्स के लिए नहीं, अपने बिहेवियर में चेंज ला करके। तभी हमको लगेगा कि हाँ, हमने जो चीजें ली है, जो क्लासेस हमने आज किया है, वो सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल हुआ है। अभी हम बात करेंगे कि एक इस चीज को बेहतर करने के लिए हमें कुछ चीज जानना जरूरी है। वो है, अब हम थोड़ा पीछे वाले स्लाइड में जा रहे हैं, वो है कि ये ABCD जानना जरूरी है। ये ABCD जो है, ये एक विंडो है, एक जोहारी विंडो। जोहारी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल साइंस में, जो कि हमारे बिहेवियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दिया है उन्होंने। तो ये जोहारी विंडो को यूज करके अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में, तो बहुत सारा चीज हम लोग बदल पाएंगे। तो जो लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे, एरिना लिखा है, ए फॉर एरिना। ये जो एरिया है, ये वो एरिया है जो हमको भी पता है और दूसरे को भी पता है। मीन्स नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स।
जैसे कि मेरे बारे में हमको भी पता है, मेरा नाम जयंत झा है, आप लोग को भी पता है। हमको भी पता है कि हम शंकर नेत्रालय में थे और सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में थे, आपको भी पता है, अभी जस्ट बताया गया। तो आपके बारे में अभी यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, सबके बारे में आपको जो पता होगा वो दूसरे को भी पता है, तो वो चीज जो है वो एरेना में आता है। ब्लाइंड एरिया जो है मीन्स खुद को नहीं पता है, मेरे बारे में हमको नहीं पता है कि मेरी कमजोरी क्या है, लेकिन हो सकता है आप लोग को पता होगा। अभी बोलने में हम थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, ये हो सकता है कमजोरी हो, या हम थोड़ा बोलते बोलते आप लोग कौन सा शब्द बोले, दिमाग में 4-5 शब्द चल रहा है, कौन चुनने के लिए हम थोड़ा देर सोचने के लिए बैठ गए, लगा जैसे कि एक्चुअली क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लास है, हम आप लोग को तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है कि आप हमारे सामने हैं, तो हमको लग रहा है कि हम आप लोगों के नजर में देख रहे हैं, जो मेरा नेचर है। लेकिन उसमें आप लोग को लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो बात है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमको नहीं पता है और आपको ये पता है। सो ये वो चीज है कि जो हमको नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है, दैट इज नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू सेल्फ। सो ये एरिया जो है दैट इज ब्लाइंड एरिया। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। तीसरा जो चीज है दैट इज क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया का मतलब नोन टू सेल्फ, हमको पता है लेकिन दूसरे को पता नहीं है, नॉट नोन, दिस इज क्लोज्ड एरिया। और चौथा जो कैटेगरी है दैट इज डार्क एरिया। मीन्स डार्क मतलब नॉट नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स, दूसरे को भी नहीं पता है और हमको भी नहीं पता है। तो जो चीज दूसरे को नहीं पता है और हमको भी नहीं पता है, वो कहां से पता करें? तो उसके इस चीज को हम छोड़ देते हैं, पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डार्क है। डार्क में जितना जाएंगे उतना फंसेंगे, तो डार्क में हमें नहीं जाना है। हमें अपने अंदर निखार लाना है, तो हमें 3 चीजों पे काम करना होगा, ए बी सी पे काम करना होगा, डी को छोड़ देना होगा। ठीक है, तो ए पे काम करेंगे, और ए को जितना हम ज्यादा बड़ा करेंगे, हमारा बी उतना छोटा होगा और सी उतना छोटा होगा, और ए जितना बड़ा होगा हमारा पर्सनल इफेक्टिवनेस उतना ही ज्यादा होगा है। तो अब ए को कैसे बड़ा करेंगे, ये पूरा का पूरा कहानी अभी तक जितना हमने बात की है वो सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पे है, और उसी चीज को समराइज करने के लिए इसको हम अभी बात कर रहे हैं। ये एबीसी मीन्स नोन टू सेल्फ, तो जो खुद को पता है वो को तो सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। जो दूसरों को पता है और खुद को नहीं पता है, वो दूसरों से ले लो, इसी को तो ओपननेस टू फीडबैक कहते हैं। हमको जो चीज अपने बारे में नहीं पता है, ठीक है, और आपको मेरे बारे में पता है कि अभी हमने लेक्चर कैसा लिया, हमने क्या बोला, आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ में, दिस इज फीडबैक। हमको तो नहीं पता है कि हम क्या बोले, हम तो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप लोग सुने नहीं सुने हमको नहीं पता चल रहा है यहाँ स्क्रीन पे, लेकिन आप लोग जब फीडबैक देंगे हमको, ऑप्टोहब की तरफ से जब फीडबैक मिलेगा कि सर लेक्चर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसे करते तो बेहतर होता, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये चीज फीडबैक हो गया। तो हम फीडबैक, तो ये फीडबैक वाला जो सेशन है, इसको जब भी बड़ा करेंगे तो हमारा एरना ए बड़ा हो जाएगा। ये सेम चीज आप लोग एक पेपर और पेन लेके ड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 बॉक्सेस हैं, ये 4 बॉक्सेस ए बी सी डी। तो ये बॉक्सेस जो है ये विंडो है। पुराने जमाने का घर है किसी का, हमारे ग्रुप में अभी जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, तो ध्यान होगा पुराने जमाने के घर में जो खिड़की होता था वो ऐसा ही होता था, 4 छोटा छोटा खिड़की होता था। अभी तो बड़ा बड़ा खिड़की होने लगा है घर सब में, बहुत सारे घर में तो होता भी नहीं है, वो स्लाइडिंग डोर हो जाता है।
बट पुराना जमाना का अगर होगा तो ठीक है, ऐसा ही खिड़की होता था। तो पुराने जमाने में घर के अंदर जो लोग होते थे वो खिड़की के अंदर से झांकते थे बाहर कौन है नहीं है। तो वैसा ही हमें इस खिड़की से झांकना है, और खिड़की से झांकते हुए हमें एरिया बढ़ाना है। अब आ जाते हैं क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया जो है मीन्स हमको पता है, दूसरों को नहीं पता है। अब अभी बताते हैं, आप लोग के साथ बात करते करते हमको पता है कि हमको प्यास लग रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अब हम तो उधर से मेरे बगल में जो बैठा हुआ है, मेरे आसपास में जो है, उसी में से उठ के एक आदमी गया पानी लेके आएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं तो कहां से आएगा। एक जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो कोई भी चीज खुद के बारे में अगर पता है और दूसरों को बोलेंगे तभी पता चलेगा कि हमें चाहिए क्या, और बोलेंगे तभी पता भी चलेगा और तभी मिलेगा भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा कहानी सर ने बता दिया, लेकिन इसका ऑप्टोमेट्री से क्या रिलेशन है? वाई सर ने ये टॉपिक क्यों रखा, पर्सनल इफेक्टिवनेस फॉर एन ऑप्टोमेट्रिस्ट? यस, टॉपिक इसीलिए रखा है। आज के डेट में कितना भी हम लोग सिर्फ नंबर में बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट आज भी रूरल एरिया में रियल ऑप्टोमेट्रिस्ट आज भी नहीं पहुंचे हैं। हम इंडिया को के रूरल इंडिया को, इंडिया के उस क्षेत्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, पर्सनल पेन लेके सिर्फ ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन के लिए इंडिया के उस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिस एरिया में रियल ऑप्टोमेट्रिस्ट, हम 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं, रियल ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं पहुंचे हैं। यस, नहीं पहुंचे हैं। और नहीं पहुंचने के पीछे जब कारण के अंदर गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनिशिएटिव टेकर का जो पेन होता है वो लेना नहीं पसंद करते हैं। और इनिशिएटिव टेकर का पेन क्यों नहीं लेना पसंद करते हैं? जब हमने ये सेशन किया है लोगों के साथ तो पता चला है कि खुद के अंदर विश्वास नहीं है, मीन्स खुद का पर्सनल इफेक्टिवनेस कम है। बहुतों के साथ काम करने के बाद आज थोड़ा सा अपने ऊपर, थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास बढ़ा है, और लगा है कि नहीं करना चाहिए, ग्लोबली ये काम करना चाहिए, नेशनल लेवल पे काम करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ बात करना चाहिए। वो भी इसलिए क्योंकि जब हम लगभग 100 से ऊपर लोगों के साथ छोटे छोटे लगभग 10 सेशन कंप्लीट करने के बाद, आज 2020 कंप्लीट होने से पहले पहले मेरे 4 स्टूडेंट ने अपना क्लिनिक बनाया है और बहुत बेहतरीन क्लिनिक चला रहे हैं, वो भी उन एरिया में जिन एरिया में ऑप्टोमेट्रिक क्लिनिक नहीं है। तो इसलिए कि चलो इतना सेशन करने के बाद अगर 4 में बदलाव आ सकता है तो जितना ही ज्यादा सेशन करेंगे उतना ही लोगों में बदलाव आएगा। तो इस बदलाव के लिए ही हमने ये टॉपिक चुना। तो टॉपिक चुनने का मकसद भी हमने आप लोग को बताया। तो अब क्या हो गया, इसको यहाँ पे ये बात सिर्फ मुझे पता थी और आज हमने आपको बता दी। मीन्स अब ये कहाँ चला गया खुद के? इससे पहले ये कौन सा चैप्टर में था? क्लोज्ड ग्रुप में था। यस, सिर्फ हमको पता थी ये मकसद। आज हमने आपको ये मकसद बता दिया तो ये कूद के कहाँ चला गया? एरिना। उधर से एरिना में। मीन्स ये नोन टू अदर्स भी हो गया ये मकसद, और नोन टू सेल्फ भी हो गया। आज कितने लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं टोटल? क्योंकि हम स्क्रीन में नहीं देख पा रहे हैं। 16। यानी कि जो चीज आज तक 1 गुना बढ़ रही थी, 1:1 के रेशियो में चल रही थी, वो आज कितना के संभावना में हो गया? 1:16। यस,
15, एक तो हम ही को इंक्लूड करके, Yes, sir. हम भी तो इसी ग्रुप का हिस्सा है। बिल्कुल सर। तो Yes, 1 sir. into 16, 1 into 6 बढ़ गया, तो हमारा Yes. इफेक्टिवनेस कहाँ जाएगा? ग्रुप का इफेक्टिवनेस कितना हो गया? 16 टाइम्स इफेक्टिव हो गया। हम इफेक्टिव हैं तो हम ग्रुप में 16 टाइम इफेक्टिव हैं। अब एक्चुअल में ये रिजल्ट कितना देगा? 16 के 16 वर्क करेंगे नहीं करेंगे, वो डार्क एरिया है। तो डार्क एरिया में नहीं जानना है कितना। अगर 16 में से 4 भी वर्क किए तो 4 गुना बढ़ गए, तो यू आर एट ग्रोथ ऑफ 4 टाइम्स ग्रोथ। तो ये तभी संभव है जब हम अपने इन एरियाज पे वर्क करेंगे। हमारा सेल्फ डिस्क्लोजर, हमारा ओपननेस टू फीडबैक और हमारा परसेप्टिवनेस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, दो चीज तो क्लियर हो गया होगा, एक है सेल्फ डिस्क्लोजर और दूसरा है ओपननेस टू फीडबैक। हमको उम्मीद है कि दो चीज क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा चीज है परसेप्टिवनेस। अब यहाँ परसेप्टिवनेस का एकदम सिंपल सा यही मतलब है कि हमने इस ग्रुप के साथ ये डिस्कस इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। 16 डिफरेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट डिफरेंट एरिया में वर्क करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते हैं ये सेशन, तो भी के बाद अगर वही वर्क करेंगे तो डेफिनेटली उस वर्क का जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी देखना, अपॉर्चुनिटी देखना, ठीक है। रियलिस्टिक पॉजिटिविटी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि फिर अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी देख, ठीक है। पॉजिटिविटी देख, पॉजिटिविटी जो रियल लाइफ में हो सकता है वो पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी देखने को ही परसेप्टिवनेस कहते हैं। अगर आपको दिखेगा कि नहीं, अभी मान लीजिए हमको आपसे बात करने के लिए बस 2 बार 3 बार मैसेज आया आपके ग्रुप में से ही, ठीक है, तो सर ज्वाइन कीजिए, लेकिन संजोग से पेशेंट बैठे हुए थे, संजोग से पेशेंट बैठे हुए थे, आ गए। हम कितना भी जल्दी कर रहे हैं, जब तक वो सेटिस्फाई होकर चले नहीं जाएंगे तब तक तो वो तो है कर सकते, लेकिन फिर भी हम वहीं पे एकदम श्योर थे कि नहीं, ये सेशन तो हम टाइम पे ही शुरू करेंगे। हालांकि 10 मिनट पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन 7 बजते बजते ज्वाइन कर ही लिए था। तो अपने ऊपर भरोसा होना ही एक परसेप्टिवनेस है कि हाँ ये हम कर सकते हैं। जहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, हो सकता है हम आज बहाना भी बना देते हैं, ठीक है। एंड रियली में आज के डेट में एक रीजन था इस सेशन को पोस्टपोन करने का, बट हाँ वो डार्क एरिया है, उसको हम रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पर्सनल चीज है। बट प्रोफेशनली आप लोग के लिए ये सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे सोच को 16 गुना ज्यादा बढ़ाना था, ठीक है। अगर यही चीज पूरे के पूरे 56 लोग होते, 56 रेस्पॉन्सेज आए थे, तो ये सेम चीज कितना बढ़ता? 56 गुना बढ़ता, 56। बट ठीक है, हम लोग 16 टाइम्स ग्रो करेंगे, हमें विश्वास है। और उसमें क्या चीज काम आएगा? वो है पर्सनल इफेक्टिवनेस। हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति का सेम पर्सनल इफेक्टिवनेस होगा, बट जहां पे व्यक्तिगत पर्सनल इफेक्टिवनेस जो है, अगर लगता है कि कहीं हम डगमगा रहे हैं, आप मेरे से हेल्प ले लो, आप अपने साथी से हेल्प ले लो, जो आपके क्लासमेट है उनसे हेल्प ले लो, और वहां पे उसको ग्रुप इफेक्टिवनेस बनाओ। कभी कभी क्या होता है, पर्सनली जाने के बजाय ग्रुप में अगर आप जाते हो तो ज्यादा बेहतर होता है।
इसी बात एक बार हम बात करना चाहेंगे, उधर से कोई ग्रुप से हमको रेस्पॉन्स करे कि कुछ चीज पूछना है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आया अभी तक, Yes, sir. तो हम उसके ऊपर बात करें। Yes, thank you so much, sir. It was an amazing session. बहुत ज्यादा अच्छा सेशन था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया।